Hello students, मीनाक्षी सिन्हा is here from Keeping in Touch with Maths से मीनाक्षी सिन्हा। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, आवाज़ खराब हो रही है, जुकाम भी हो रहा है, लेकिन even though I am here for you, एक geometrical problem for class 10th CBSE, UPSC board, UP board and ICSE. Question is, एक triangle है, there is a triangle ABC. A, B, C और C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया D। ये डिस्टेंस AC इज इक्वल टू x, दिस एंगल इज इक्वल टू अल्फा एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 2 अल्फा। प्लीज डोंट गो ऑन माय फिगर पे ना जाए, क्वेश्चन को समझिए बस और कुछ नहीं। ये 2 अल्फा है, ओके। वी हैव टू फाइंड दिस इज द डिस्टेंस 1, AD इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज 4। फाइंड x इज इक्वल टू व्हाट। ये ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ये सोच के चल रहे हैं। यहाँ अल्फा टू अल्फा में एक बात याद आती है, सबसे पहले हमने देखा इसमें h, लेट सपोज CD इज इक्वल टू h, और अल्फा टू अल्फा में टेंजेंट की बात याद आ रही है। अल्फा और टू अल्फा में टेंजेंट याद आता है फॉर्मूला कि टेंजेंट ऑफ टू अल्फा होता है, this can be written as 2 tan alpha 2 tan square alpha 2 tan alpha plus 1 minus tan square alpha। ये फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। क्या आता है, tan of a plus b, this is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan of a into tan of b। ये फॉर्मूला होता है। इसमें a इज इक्वल टू b, b और a इक्वल हो जाएंगे, इक्वल टू अल्फा, देन विल गेट दिस फॉर्मूला, ओके। tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। when a is equal to b is equal to alpha, then this tan a plus b become equal to tan of 2 alpha, and 2 alpha will convert in this form। इसका इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे ये देख के ऐसे ही आता है। देखिए इसके अंदर देखिए बेस पता है, परपेंडिकुलर हमने h मान ली, इसके अंदर भी बेस पता है, परपेंडिकुलर h मान ली, तो tan की फॉर्मूला ही इसके अंदर लग सकता है। करिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम लिखते हैं tan ऑफ अल्फा, जो कि लिखा जा सकता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। tan of 2 अल्फा, अब tan of 2 अल्फा आता है इन ट्रायंगल tan of 2 अल्फा, this can be obtained in triangle DBC। This is the angle 2 alpha, this is perpendicular upon base, this is equal to h upon 4। as हमने माना है कि CD को कितना माना है h, और DC is already given to DB is already given to us 4, so that CD upon this tan 2 alpha is equal to CD upon DB, that is h upon 4। so this h upon 4, this can be written 2 into, and tan alpha किस में से निकाले भाई, tan alpha इस वाले में से निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल ADC ACD में tangent alpha, this is the base and this is perpendicular। tangent alpha is equal to, that was 2 alpha, और अब हमें tangent alpha, tangent 2 alpha इस ट्रायंगल से निकाला, और tangent single alpha इस वाले ट्रायंगल से। so this will be as a base and this will be perpendicular, this is h upon
1 because h is equal to this was CD upon AD is equal to h upon 1. ये है इट मीन्स h की वैल्यू टेंजेंट अल्फा है इज इक्वल टू 1 टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू h upon 1. यहाँ पे रख दीजिए इसको. Tangent to alpha was h upon 4 and tangent alpha is equal to h upon 1. So 2 into h upon 1 that is h into 1 minus sorry perpendicular, this is wrong, perpendicular upon base, sorry. This is perpendicular is equal to this and this is base 1 upon h. Okay, very sorry, this is 1 upon h, this is perpendicular AD upon CD is equal to 1 upon h. So it means in place of tangent alpha we can write 1 upon h. This is very sorry, 2 into tangent of alpha. Tangent alpha is equal to 1 upon h upon 1 minus 1 upon h whole square. इसको सॉल्व कीजिए. 2 upon h upon h square minus 1 upon h square. Correct? It means we'll get here 2 into h upon h square minus 1 is equal to h upon 4. This h get cancelled and we'll get h square minus 1. This will be equal to 2 into 4, that is 8. It means h square is equal to 9. It means h is equal to 3. This is plus minus 3, but we can't take minus वाली h तो हम ले नहीं सकते, right? So that it means h is equal to minus 3 is not possible, and we will take h is equal to simply 3. It means this is equal to CD is equal to 3. ये आपके हो गए 3 units. Now we have to find x. अब x निकालना है. Find x is equal to, this was the problem. इसको करने के लिए पाइथागोरस लगाइए. अप्लाई द पाइथागोरस और इन ट्रायंगल ABC. In triangle, which triangle? ADC. CA square, this will be equal to DC square plus AC square, AD square. DC is equal to h, that is 3, plus AD is equal to 1. It means CD, this will be equal to 9 plus 1 square of CD, which is equal to x, CA, square of CA, which is equal to x, is equal to root of 10. That is answer. CA square is equal to root of 10. This will be the answer. Clear? Nice question. अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्री इसमें आ रही है. बच्चों को ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए, ये नहीं कि अगर वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, और अगर ज्योमेट्री से रिलेटेड है तो ज्योमेट्री भी. हमें कॉम्बिनेशन करना चाहिए, उससे दो सब्जेक्ट, तीसरे सब्जेक्ट एक ही बार में रिवाइज हो जाते हैं. मेरा गला खराब है, मुझे बोलने में परेशानी हो रही है, आपको शायद कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसे दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये ट्रायंगल दे रखा था ABC, जिसमें ये वाली दूरी AD C से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला था AB से. ABC एक ट्रायंगल था, C पॉइंट से AB पे एक परपेंडिकुलर डाला है D पे, ये 90 डिग्री एंगल है, ये वाला कोण 90 डिग्री है. तो ये वाली डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और ये वाली दूरी 4 दे रखी थी. ये एंगल 2 अल्फा और यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है
ये एंगल अल्फा बनाता है, तो हमें AC की वैल्यू निकालनी थी। इसके लिए सबसे पहले हमें, वैसे तो डायरेक्ट हम H नहीं निकाल सकते, तो हमने एक क्या किया, 2 अल्फा और अल्फा को देख कर टेंजेंट अल्फा की बात याद आती है। टेंजेंट अल्फा हम इधर से इस वाले ट्रायंगल से निकालेंगे, टेंजेंट 2 अल्फा इधर वाले ट्रायंगल से निकालेंगे और इनके एक फॉर्मूला रिलेट करेंगे कि टेंजेंट ऑफ 2 अल्फा कैन बी रिटन एज 2 टेंजेंट अल्फा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। उसमें टेंजेंट ऑफ 2 अल्फा इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी h/4 निकाल लिया और इज इक्वल टू 2 इंटू टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा इस वाले केस में इस एंगल के लिए ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो 1/h इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा होगा। उससे h की वैल्यू निकली +-3, बिकॉज h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आया, तो h इज इक्वल टू +-3 माइनस h can't be possible, so that we will take the +1. It means h will only be possible equal to 3. अब जब h आ गया तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना, ये 90 डिग्री का एंगल है, ADC, ये 90 डिग्री है, तो AC स्क्वायर which is to be determined equal to x square is equal to 1 square plus 3 square, and hence AC is equal to x root of tan. This is the answer. Answer is x is equal to root of tan. Okay. मेरी आवाज़ साफ ना होने के बावजूद मैं आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने दोबारा इसीलिए रिवाइज किया है। आप इसको एंजॉय कीजिए, समझिए, और मैं आशा करती हूँ आगे भी आप मेरे चैनल को देखते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर। थैंक यू, गुड नाइट, सी यू।